یہ ہیں بدلو کی نشریات. میں شیما کرمانی ہوں اور آج آپ کے لیے بدلو کی نشریات میں اپنا پروگرام نئے رنگِ خیال لے کر حاضر ہوں. لیکن یہ سب شروع کرنے سے پہلے میں اپنا مختصر سا تعارف کرا دوں. میرا تعلق پرفارمنگ آرٹ سے ہے. میں ایک کلاسیکل ڈانسر ہوں اور ساتھ ساتھ تھیٹر سے بھی میری وابستگی رہی ہے. گزشتہ 40 سالوں سے اپنے کلچرل ایکشن گروپ تحریک نسواں کے ذریعے میں تھیٹر اور ڈانس کے مختلف پرفارمنسز پیش کرتی آئی ہوں. آئیے ہم آپ کو ایک کہانی سنائیں. 1001 ہی رات اور میری بیوی کی میری زندگی کا سفر گھر سے اب جاگتی ہے تو جائے جان. میں تو اپنے سارے فرض پیچھے چھوڑائی. میرا وطن جل رہا ہے تو لاکھوں عورتیں ہمارے ساتھ آنے والی ان زبان دراز عورتوں کو بکنے دیا، ان کی زبانیں کھینچی. جہالت کم عقلی کا فائدہ خوب اٹھاتا ہوا. اب وقت کا کھونا نہیں، اچھا چلو فوراً دعا مانگیں. محترمہ بات کو سمجھی. اب پاکستان میں کوئی ہندو نہیں رہ سکتا. یوں تو سبھی جانتے ہیں کہ انسانی تہذیب کے ارتقاء میں آرٹ کے ہر شعبے کا کتنا دخل رہا ہے. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ آج ہمارے معاشرے میں جہاں لٹریسی ریٹس بہت ہی کم ہیں، رقص، موسیقی اور ڈرامہ یعنی پرفارمنگ آرٹس لوگوں کا شعور بڑھانے اور اپنے تہذیبی ورثے سے آگہی دلانے کا انتہائی اہم ذریعہ ہے. آپ اپنے ارد گرد نظر دوڑائیے تو لوگ خصوصاً نوجوان ذہنی الجھنوں، ڈپریشن اور فرسٹریشن میں گھرے نظر آتے ہیں. لوگوں میں عمومی طور پر شاعری یا ادب سے رغبت کا رجحان بہت کم نظر آتا ہے. لڑکے اور لڑکیوں نے کتابیں پڑھنا چھوڑ دیا ہے. کسی بھی فن، خاص طور سے کلاسیکی فن کو سمجھنے کی طرف جانے کا تو دور کا سوال ہے. میرے پاس اکثر نوجوان لڑکے لڑکیاں آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ رقص سیکھنا چاہتے ہیں، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ ہفتے 10 دن میں وہ رقص سیکھ جائیں. اب یہ ان کو کون سمجھائے کہ کسی بھی کلاسیکی فن کو سیکھنے کے لیے کئی برس، کئی سال کی محنت اور ریاضت درکار ہوتی ہے. ہمارے استادوں اور گروؤں کا کہنا تھا کہ خون پسینہ ایک کیے بغیر کلاسیکی رقص، موسیقی، ساز یا گانا سیکھنا نہیں سیکھا جا سکتا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی کیوں اتنے سال کی محنت لگائے کوئی یہ کلاسیکی فنون سیکھنے میں؟ ان سب کی ضرورت کیا ہے؟ کلاسیکی فنون تو خیر دور کی بات، ہمارے ہاں اکثر لوگ فنون لطیفہ اور خاص کر پرفارمنگ آرٹس کو غیر ضروری سمجھتے ہیں، بلکہ کوئی مکتبہ فکر تو ان کو نیست و نابود کرنے کے درپے ہیں. پرفارمنگ آرٹ کی حیثیت، اہمیت اور ضرورت معاشرے اور سماج میں کیا ہے اور کیا ہونی چاہیے، یہ ہمارے اس سلسلہ وار پروگرام نئے رنگِ خیال کا موضوع ہے. آج اس ابتدائی پروگرام میں پرفارمنگ آرٹس کی ایک خاص صنف رقص کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہوں. اس کی وجہ یہ ہے
कि रक़्स मेरे नज़दीक तमाम फ़नून के मुकाबले में ज़िंदगी से सबसे गहरा ताल्लुक़ रखता है। इस कायनात पर नज़र दौड़ाइए, पूरी कायनात का ज़र्रा ज़र्रा महवे रक़्स है। चाँद, सितारे, सैयारे, सूरज, ये सब मुसलसल गर्दिश में रहते हैं। गर्दिश यानी मूवमेंट या रक़्स फितरत का बुनियादी उन्सर है। अगर हम एक दरख्त को देखते हैं, जब हवा चलती है तो उसके पत्ते एक ताल में गर्दिश करते हैं। पानी उसकी अपनी गर्दिश है, तो हमारे गिर्द हर चीज़ एक गर्दिश में है, उसकी अपनी एक ताल है, एक सुर है। फिर हम अपने अंदर देखते हैं, हमारे अंदर का रक़्स, हमारे अंदर का ताल, हमारे अंदर का सुर, वो क्या है? जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसकी माँ या डॉक्टर सबसे पहले उसका नब्ज़ चेक करते हैं। ये देखते हैं कि उसकी आवाज़, उसको एक थप्पड़ मारते हैं कि आवाज़ निकले, उसकी आवाज़ निकल रही है या नहीं। उसके हाथ पाँव हिलाते हैं। अगर बच्चे का नब्ज़ सही नहीं हो, अगर उसकी आवाज़ नहीं निकले, अगर उसके हाथ पाँव नहीं हिले, तो फिर परेशानी की बात हो जाती है ना। तो ये हमारे अंदर, इंसान के अंदर की ताल है, इंसान के अंदर का सुर है, एक रिदम और एक मेलोडी, ताल और सुर, यही रक़्स है। एक है लोक रक़्स। लोक का मतलब है लोग, तो आप समझ गए होंगे ये कौन सा रक़्स है। ये वो रक़्स है जो आम इंसान करता है, आम लोग करते हैं। जब लोग एक गांव में रहते थे, उनको बीज बोना था, तो बीज अगर मिल करके एक इज्तिमाई मूवमेंट में किया जाए तो वो एक आसान काम लगता है। वो एक ऐसा काम होता है जो आप एंजॉय कर सकते हैं, जिसमें खुशी मिल सकती है। फिर फसल काटने का मूवमेंट, वो भी अगर इज्तिमाई मूवमेंट में किया जाए तो आसानी से हो जाता है। शहर में आप देखें, अगर किसी को कोई भारी चीज़ खींचनी है, आपने देखा होगा ये मंजर कि रस्सी खींची जा रही है तो एक ख़ास, सब मिल करके एक ख़ास आवाज़ निकालते हैं, ओ। तो वो एक, ये जो मैं बात कर रही हूँ, एक कलेक्टिव इज्तिमाई मूवमेंट है और इज्तिमाई लेबर है। ये एक इंसान के ज़िंदगी से जुड़ा हुआ जो काम वो कर रहा है उसका। तो लोक रक़्स जो है वो ह्यूमन लेबर से जुड़ा हुआ है, कलेक्टिव ह्यूमन लेबर। और फिर आप देखते हैं कि जब फसल काटते हैं तो रक़्स करते हैं, भंगड़ा करते हैं, सिंध में झूमेर करते हैं। अब क्या फ़र्क है इन लोक रक़्स में कि जब सिंध में जो है वो रेगिस्तान है, गरम ज़मीन है, तो हल्का हल्का किया जाता है। पंजाब में छलांगे मार मार के किया जाता है। तो इस तरह से हर इलाके का अपना अपना एक लोक रक़्स होता है। फिर एक है जिसे हम क्लासिकी रक़्स कहते हैं। ये सदियों की इज्तिमाई नॉलेज, इल्म और इज्तिमाई एक्सपीरियंस जो इकट्ठा कर के लोग इसको तैयार करते हैं, जिस तरह और ये भी हर इलाके का अलहदा होता है। इलाके की जियोग्राफी, इलाके के मौसम, रंग, लोगों का रहन सहन, ये सब उस पर असरअंदाज होते हैं। और फिर आप देखते हैं कि मिसाल के तौर पर मोहनजोदारो से जो दरियाफ्त की गई एक स्टैचू निकला था, एक डांसिंग गर्ल का, तो वो जिस अंदाज में खड़ी है वो पोज भी हमारे क्लासिकी रक़्स में आज भी नज़र आता है।
जिस चीज़ की मैं एक बात करना चाहती हूँ वो है वो रक़्स जो वजद की कैफियत में आने के लिए किया जाता है, गोल गोल चक्कर। इसको आप देखें कि बड़े बड़े सूफ़ी, बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े शायर, मिसाल के तौर और वो सेंट्स, वो बुज़ुर्ग और उनकी दरगाहों पे जो किया जाता है। मिसाल के तौर पर एक मौलाना रूमी का अपना एक अंदाज़ था जिसे कहते हैं वर्लिंग दरवेशेस, वो आहिस्ता आहिस्ता एक चक्कर में आते हैं। फिर है ये सारे अमीर खुसरो, शाह लतीफ़ बिटाई, बुल्ले शाह ख़ुद पाँव में घुंघरू पहनकर रक़्स करते थे। तो इस तरह से जब कोई हमको कहता है कि नहीं ये तो रक़्स हमारे ज़मीन से ताल्लुक़ नहीं रखता, हमारी धरती से ताल्लुक़ नहीं रखता, तो ज़रूर समझ जाइए कि ये गलत बात है। ज़मीन से, धरती से, हमारे समाज से, हमारी तहज़ीब से, हमारी तारीख़ से रक़्स का बहुत करीबी जोड़ है। अब मैं आपको दिखाना चाहती हूँ एक छोटा सा क्लिप जो मैंने तैयार किया है अमीर खुसरो की शायरी पर। अमीर खुसरो वो साहब हैं जिन्होंने सबसे पहली कव्वाली, जिसे वो कहा जाता था कौल, लिखा था। तो ये रक़्स मैंने अमीर खुसरो के कौल पर कोरियोग्राफ किया है। आज रंग है। आज रंग
अभी आपने एक रिकॉर्डिंग का टुकड़ा देखा। ये जैसे मैंने बताया कि अमीर खुसरो की कव्वाली पर मैंने एक रक्स बनाया था। इसमें आपने देखा कि बार बार डांसर जो है एक चक्कर ले रहे हैं। तो चक्कर एक ऐसा मूवमेंट है हमारे रक्स में जो एक तरह से कुदरती सा मूवमेंट है कि इंसान जब पहली दफ़ा खड़ा होता है और इधर उधर देखता है अपनी दुनिया को, तो उसे क्या दिखाई देता है। ये चक्कर लेते हुए हम एक वक्त की कैफियत में आ जाते हैं। ये चक्कर हमको डिसिप्लिन सिखाता है, चक्कर हमको फोकस करना सिखाता है, और सबसे अहम बात कि चक्कर हमको अपने अंदर देखने, अपने अंदर अपना वजूद समझने, अपना वजूद इस कायनात में, अपना वजूद इस दुनिया में और स्पेस का ताल्लुक़, ये सब चीज़ें इंसान को समझ में आने लगती हैं। और ये सारे जो सूफ़ी बुज़ुर्ग थे जिनके मज़ारों पे, जिनकी दरगाहों पे इसी किस्म का रक़्स किया जाता है आज भी, जो हम उसे पहचानते हैं धमाल के नाम से। तो ये भी एक कैफियत ऐसी है कि जिसमें इंसान कुछ ढूंढता है, सच को ढूंढता है। एक चीज़ और मैं कहना चाहती हूँ रक़्स के बारे में, वो ये कि औरतों के लिए, ख़ुसूसन औरतों के हुकूक़ का जो की तहरीक है, उसके लिए कितना ज़रूरी है कि जब हम औरतों को सिखाते हैं कि आप सीधा खड़ी हों, आपकी जो रीढ़ की हड्डी है उसको आप सीधा करें, तो आपको समझ में आता है कि आपके अंदर एक ताकत है, एक आपको पावर मिलता है, क़ुव्वत मिलती है, और आप सांस खुले तौर से ले सकते हैं। तो रक़्स सबके लिए अहम है। बच्चों को अगर सिखाया जाए तो उनका ब्रेन भी शार्प होता है, तेज़ होता है, यादाश्त तेज़ होती है, फोकस, कंसंट्रेशन, और जिसे हम कहते हैं बॉडी एंड माइंड कोऑर्डिनेशन। तो आखिर में मैं ये सिर्फ कहना चाहती हूँ कि इंसानियत का पैगाम, इश्क और मोहब्बत का पैगाम हमको अपने समाज में डाइवर्सिटी, टॉलरेंस या बर्दाश्त, इंक्लूसिविटी और प्लूरलिज़म वापस लाने की अशद ज़रूरत है। और इसी तरीक़े से हम अपने समाज में तशद्दुद, इंतहा पसंदी और बढ़ती हुई नफ़रतें ख़त्म कर सकते हैं। तो आइए सब मिलकर रक़्स करें। शुक्रिया। ये हैं बदलो की नशर।